Hello everyone, today we'll start class 10th mathematics chapter reflection coordinate geometry, and I'll start from very basic. Those students who have any difficulty, please be with me till the last. I promise you will not be left with any confusion. The chapter name is coordinate geometry. It is the branch of geometry in which we define the position of any point in the Cartesian system. Let me tell you, एक कार्टेशियन सिस्टम में वेयर इन वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस, वेयर द पॉइंट इज, उस पॉइंट को डिफाइन कर पाएं, बता पाएं कि किस जगह वो पॉइंट है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वी हैव कम अक्रॉस सम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन क्लास 8th एंड 9th ऑल्सो. वी नो द एक्सिस. मैं स्टार्ट करता हूँ. वी नो द कॉमन एक्सिस. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सिस, आप सभी को पता है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सिस. दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस is known as, this horizontal axis is known as x axis. This vertical axis is known as y axis. There is a name again given to this x and y axis. हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है. x axis is also known as abscissa. हमने पढ़ा है abscissa. And y axis is also known as ordinate. कोई इसमें अंतर नहीं है. These are same words given to both the axis. ठीक है. Now this point is known as origin, where x and y axis intersect. इस point को हम origin कहते हैं. Now we have some scale. जैसे मान के चलिए x पे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5. काफ़ी बार हमने ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं. When we go left onto the x axis, the numbers are -1, -2, -3, -4. Now you go on to the y axis, it is +1, +2, +3, +4. नीचे जाएंगे, देर इज -1, -2, -3, -4, -5. This is all about the coordinate geometry. When we place a point somewhere, imagine this point be here, this point be here. This point is on x-axis. If you say this is 5, on y-axis this point is at the 4 position. Every time we write any point, we define any point, we write in bracket wherein first place and second place gives us some value. पहली place हमेशा वो होती है जो हमें ये बताती है कि how much it is away from y axis. x पे हमने कितना चला है. ये एक्सिस की पोजीशंस हैं. x एक्सिस पे अगर हम 5 आगे चल जाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा. y एक्सिस पे अगर हम 4 ऊपर चले जाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा. पहला जो पॉइंट है वो कुछ x एक्सिस को बताता है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस को बताता है. x एक्सिस पे कितना चलें, y एक्सिस पे कितना चलें, ये हमें दिखाता है. एक पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जाता है हमने समझ लिया. नाउ देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स वेयर इन वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई ड्रॉ वन मोर कार्टेशियन सिस्टम. Now these are quadrants. These are quadrants. This is called first quadrant. This is called first quadrant. This is called second quadrant. This is called third quadrant. And this is called fourth quadrant. Now these are 4 quadrant. In first quadrant both x and y will be positive. देखो आप x की वैल्यू जैसे यहाँ क्या होती है 1, 2, y की वैल्यू भी क्या होती है 1, 2. बोथ x एंड y आर पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में. इन सेकेंड क्वाड्रेंट देखो x की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आएगी. x हम पहले रखते हैं, हमने खुद ही डिसाइड किया है, तो इसमें वैल्यूज आती हैं -+. इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव बोथ माइनस, x की भी वैल्यू माइनस, y की भी वैल्यू माइनस, वी हैव बोथ माइनस. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट यू विल गेट प्लस एज x की वैल्यू देखो ये प्लस है इस क्वाड्रेंट में 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू क्या है माइनस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी गेट ++, सेकेंड क्वाड्रेंट वी गेट -+, थर्ड क्वाड्रेंट वी गेट -, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी गेट +-. ये एक अंडरस्टैंडिंग है जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर ब्रीफली. दीज आर 2 things which we need to understand. Now, in this chapter, we are reflecting something. We are reflecting the position of a point. We are reflecting the position of a point with respect to x and y axis both. ठीक है.
Reflection we have studied in physics. Reflection is nothing but having a mirror and where the image is being formed. Correct है ये बात? मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. Let me draw a shape of Cartesian system wherein I'll give you a point. Let me imagine this is a point somewhere in first quadrant and its value is 3, 2. Its value is 3, 2. Now, if this is the mirror, means I am considering which axis as mirror? Please tell me. This is which axis? This is y-axis. And I am considering y-axis as mirror. इस शीशे में अगर इस पॉइंट को बनाए तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी. सही बात है कि नहीं? इसकी इमेज यहाँ बनेगी. आप बताएं शीशे में क्या होता है? जितना दूर आप खड़े रहते हैं उतना ही दूर आपकी इमेज रहती है. बात सही है कि नहीं? उतना ही दूर आपकी इमेज रहती है. बात सही है कि नहीं? अगर ये पॉइंट है 3, 2, अगर ये पॉइंट है 3, 2, इफ दिस पॉइंट इज 3, 2, अगर ये x में माइनस में चला जाएगा इट्स इमेज विल बी -3, 2. सही बात है. ऊपर तो ये रहेगा, नीचे थोड़ी ना जा रहा है. इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा है कि x की वैल्यू माइनस हो जाती है. सही बात है कि नहीं? इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी. आप समझिए, ऊपर तो रहेगा ही, सिर्फ x में माइनस हो जाएगा. तो अगर हम y एक्सिस को मिरर बनाते हैं तो y वैल्यू का कुछ नहीं होता है. ठीक है, मैं यहाँ नीचे नोट डाउन भी करूंगा, मैं यहाँ लिखते चलता हूं. अगर हम y एक्सिस को मिरर बनाते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है. y कोऑर्डिनेट वैल्यू डजंट चेंज. ठीक बात है. y कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज नहीं होती है. फॉर एन एग्जांपल अभी हमने लिया था, अगर हमने y एक्सिस को मिरर बनाया, अगर एक पॉइंट 3, 2 है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? उसकी इमेज -3, 2 बनेगी. y एक्सिस चेंज नहीं होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ x होता है. उल्टा केस चल रहा है. अब एक और केस ले लेते हैं, मैं कार्टेशियन सिस्टम फिर बना लेता हूं. नाउ आई विल कंसीडर x एक्सिस एज मिरर. ये एक मिरर बना लेता हूं मैं. अब सोचो ये सेम पॉइंट है, अगर मैं लेता हूं इसको 3, 2, इसका अब इस शीशे पे इमेज बनाऊंगा तो आप खुद कहेंगे सर इसकी इमेज अब नीचे बनेगी. शीशा यहाँ है, इधर तो शीशा ही नहीं लगा जहां पहले बोल रहे थे. इस जगह तो शीशा ही नहीं लगा है. ठीक बात है. इसकी इमेज नीचे बनेगी. तो इसकी इमेज अगर नीचे बनेगी तो अब वैल्यू बताओ क्या हो जाएंगी? अगर इसकी इमेज नीचे बनेगी तो अब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी मुझे बताइए. क्या एक्स में कुछ बदलाव हुआ? नहीं. ये यहां से 3 ही दूर है एक्स एक्सिस पे, वो भी इधर सिर्फ माइनस का वैल्यू बदल जाएगा. ठीक बात है कि नहीं? तो अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर बना रहे हैं, आई एम जनरलाइजिंग द थिंग्स, ध्यान से रखें आप. अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर बना रहे हैं तो क्या हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू डज नॉट चेंज. बताइए. आप समझ पा रहे होंगे. जिस चीज को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, जिस चीज को हम मिरर बना रहे हैं, जिस एक्सिस को हम मिरर बना रहे हैं, वो वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती है. चेंज होती है वो वैल्यू जो दूसरी अवेलेबल है. अगर हमने एक्स एक्सिस को मिरर बनाया तो एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं होगा, वाई माइनस का हो जाएगा. अगर हमने वाई एक्सिस को इमेज के लिए मिरर बनाया तो वाई एक्सिस कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्स बदलेगा. ये यहाँ के प्रूफ से हमने देख चुका है. अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे अगर हम कर पाएं, उससे पहले एक और चीज, कभी कभी हमें ओरिजिन के अलोंग भी हमको कह देते हैं इमेज बनाना. ओरिजिन के अलोंग का मतलब होता है कि दोनों, मैं नीचे एक डायग्राम बना लेता हूं. अगर ओरिजिन के अलोंग कोई इमेज बनाने के लिए कहता है तो मान के चलो यही पॉइंट यहाँ 3, 2 है. ये चाहते हैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दो. यहां क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाके ये हो जाएगा -3, -2. दोनों ही साइन चेंज हो जाते हैं. दोनों ही साइन चेंज हो जाते हैं. किसके लिए? अगर कोई ओरिजिन के अलोंग इमेज बनाने के लिए कहता है. तो जनरलाइज करते हैं, फिर से बताओ. पहली चीज, अगर एक्स एक्सिस को हमने मिरर बनाया, क्या होगा बताओ? एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई चेंज होगा. वाई को चेंज करना पड़ेगा. सेकेंड, वाई एक्सिस को अगर हमने मिरर बनाया,
सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई चेंज नहीं, मतलब जिस एक्सिस को मिरर बना रहे हैं वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। और अगर ओरिजिन के अलाउंग हमको रिफ्लेक्शन चेक करना है तो दोनों ही वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी। ठीक बात है, ठीक बात है। कुछ क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझ पाएंगे, कुछ क्वेश्चन की मदद से समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग अंडर एक्स एक्सिस बताओ। एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस वैल्यू डज नॉट चेंज, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक बात है। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस वैल्यू विल चेंज इट्स साइन, विल चेंज इट्स साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या आंसर्स होंगे बताइए, मैं एक डायग्राम के थ्रू भी कर लेता हूँ। पहला वाला, अगर कोई बच्चे कहेंगे हम डाउट ना रह जाए, एक डायग्राम ले लेते हैं हम, एक डायग्राम ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक बात है, 1 2 3। आपका पॉइंट कहाँ है बताइए, 3 -4, -1 -2 -3 -4, कहाँ पॉइंट है आपका, एक्स पे 3, यहाँ पॉइंट है आपका। और शीशा आपको मिरर जो है वो कौन सी एक्सिस पे बनाने के लिए कह रहे हैं, वो एक्स एक्सिस। बताइए आप मुझे, एक एग्जांपल पहला कर लेते हैं ताकि आपको जो हमने लिखा है वो कन्विंस हो जाए। बताओ इसकी इमेज इस लाइन में नहीं बनेगी क्या, यहाँ इमेज जाके बनेगी कि नहीं, क्योंकि शीशा एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी। आंसर हो जाएगा 3 4। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस पे मिरर लगाए, बार बार बता रहा हूं मैं, अगर एक्स एक्सिस पे मिरर लगाए एक्स की वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। वाई को उल्टा कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 5 6, इसका आंसर हो जाएगा -3/2, ये माइनस का 1/2, इसका साइन चेंज होके +½ -6, 0 था तो 0 ही रहेगा, इसका साइन कुछ होता ही नहीं है। दिस इज द आंसर। क्या सिंपल नहीं था क्या ये? आगे आ जाते हैं, प्लीज बी विद मी, प्लीज बी विद मी। वाई एक्सिस पे हमने रिफ्लेक्शन कोशिश कर रहे हैं, फिर बता रहा हूं, अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, क्या होगा बताइए आप, वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा। मैंने बोला वाई कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, विल चेंज इट्स साइन, विल चेंज इट्स साइन। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, y का है तो y तो चेंज ही नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा -3 -4, y तो चेंज ही नहीं होगा। 5 -6, y तो चेंज ही नहीं होगा। 3/2 और ½ y तो चेंज ही नहीं होगा, x उल्टा हो जाएगा। 0 -5, ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, y तो चेंज ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगले पे आ जाते हैं, ओरिजिन तो मैंने खुद ही बोला दोनों ही वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी। 3 -5 का आंसर हो जाएगा -3 5, दोनों उल्टे हो जाएंगे 4 7, 6 -7, 0 0 तो ओरिजिन ही होता है, उसका इमेज कहाँ बनाओगे, 0 0 ही रहेगा आंसर आपका, 0 0 ही आंसर रहेगा आपका। अब ऐसे ही क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे, कोई नई बात नहीं आएगी, पर थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को। क्या कह रहे हैं, कभी कभी वो इमेज के हमें कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की निकालनी पड़ती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट ही देंगे तो इमेज की, इतना ही केयरफुल रहेंगे और उसका कोई बड़ा बात नहीं है। एक्स एक्सिस की बात है, पहले तो बताओ, बात हो रही है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे मिरर लगा है, ध्यान रखना मिरर कहाँ है वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस, द पॉइंट एस इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट दे दिए, इमेज के कोऑर्डिनेट दे दिए, इमेज है -4 और 5। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब एस पॉइंट क्या होगा। अब बताओ एक्स एक्सिस का जब होता था तो क्या चेंज होता था, तो एक्स तो चेंज होता नहीं था, एक्स तो डज नॉट चेंज वाले केस में आता था, सिर्फ वाई चेंज होता था, वाई चेंज होता था। तो एक्स तो चेंज नहीं होगा तो एक्स तो ऑब्जेक्ट का -4 ही रहा होगा, वाई क्या होगा -5। देखो इसकी इमेज बनी कि नहीं बनी, इसकी इमेज बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला सवाल का आंसर तो हमारा हो गया, क्या आंसर हो गया, -4 -5, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज एस अंदर वाई। अब एस का पॉइंट कितना है हमारा, -4 -5। अब वो चाहते हैं इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन देना है वाई एक्सिस पे, हमें रिफ्लेक्शन देना है वाई पे। अब बताओ वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी, वाई -5 ही रख दो,
एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 - 5। कोई डाउट है तो बताइए आप, बार बार बता रहा हूं, टिल द लास्ट आप रहेंगे, यही चीज कहूंगा, एक्स पे अगर मिरर लगाया एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। जनरलाइज किया हमने, देख के एग्जांपल से जनरलाइज किया है। नेक्स्ट, अ पॉइंट क्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, ये ओरिजिन वाला सवाल हो गया। इमेज के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, इमेज के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 5, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के दोनों साइन चेंज हुए होंगे, तो -2 और 5 होगा ऑब्जेक्ट, ठीक बात है कि नहीं। अब हमने पहले का तो आंसर निकाल लिया, फिर वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब इस क्यू के रिफ्लेक्शन अंडर एक्स करना है, क्यू का रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस हमें करने के लिए बोला है। एक्स एक्सिस का मतलब फिर बताओ मुझे स्टूडेंट्स, एक्स तो चेंज ही नहीं होगा, -2 ही रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा, -5 का आंसर है। बताइए, बिल्कुल आसान रहा है कि नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पॉइंट P 2, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन। हाँ, ये बात मान लेते हैं, ये थोड़ा सवाल अलग हुआ है, ये एक्स वाई के अलावा, इसको मैं ड्रॉ भी कर लूंगा, इसको मैं ड्रॉ कर लूंगा। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो नए हैं हम रशियन नहीं करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, हम रशियन नहीं करेंगे। मैं अगर इस लाइन को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, अब मैं इसमें थोड़ा बना लेता हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप मुझे बताइए, वैल्यू प्लस में है, यहाँ वैल्यू माइनस में रहती हैं, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, बच्चों के बेसिक्स भी ठीक होते चले जाएं। ये वाई एक्सिस है, ठीक बात है, ये ठीक बात चल रही है। अब मुझे ये बताइए उन्होंने क्या कहा है, वो एक बार हम ध्यान से देखते हैं। उन्होंने कहा है एक पॉइंट है 2, 3, कहाँ होगा, एक्स पे 2 वाई पे 3, ये पॉइंट सही है, दूसरे कलर से मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से आइडेंटिफाई हो। 2, 3 यहाँ ये पॉइंट है, ठीक बात है। अब वो ना एक्स एक्सिस के अलोंग हमें रिफ्लेक्शन चाहते हैं ना वाई, वो चाहते हैं एक लाइन x = 4। एक लाइन x = 4 का मतलब होता है x की वैल्यू जहां 4 हो, y का पता नहीं, तो ये लाइन होती है x = 4। देखो मैं बना भी दे रहा हूं, ये लाइन होती है x = 4। इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू क्या है बताओ सभी बच्चों, इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू तो 4 है, y प्लस हो माइनस हो हमें नहीं पता। अब इसके अलोंग हमें इमेज बनानी है, बताओ। अब x और y की तो बात ही खत्म हो गई, x और y की तो बात ही खत्म हो गई। अब इस लाइन से ये कितनी दूर है, ये बताओ, ये दूरी कितनी है। हम 2 पे थे, 4 पे लाइन है, तो भैया इतनी ही दूर इमेज बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इतनी दूर, यहाँ 6 पे। बात सही है कि नहीं, मुझे बताओ, बात सही है कि नहीं। ये 2 दूर था यहाँ से, तो यहाँ से भी 2 दूर हमें आना पड़ेगा। ये पॉइंट कितना था हमको जो दिया था, 2, 3। अब 2 से लाइन कितनी दूर है एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 कदम, तो हम 2 कदम राइट आएंगे, इमेज भी हमारी, तो ये आ जाएगा यहाँ 4 + 2, कितना हो जाएगा बताओ, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 3। कोई डाउट है किसी को। देखो ये इमेज तो ऊपर ही बनी ना, इमेज तो नीचे नहीं आई। यहाँ से ले, यहाँ शीशा था, इस लाइन पे मेरा, इस लाइन पे मेरा शीशा था, मिरर कहाँ था, इस लाइन के ऊपर। इस शीशे से ये पॉइंट 2 कदम दूर है, तो इमेज भी 2 कदम इधर बनेगी। तो ये शीशा 4 पर है, तो ये इमेज कहाँ पे आ जाएगी, 6 पे, और वाई एक्सिस तो चेंज होना नहीं है, तो कहाँ बन जाएगा बताओ, P' का पॉइंट आएगा 6, 3। किसी को डाउट है तो बताइए। ये जो लाइन है वो शीशा है, एक ऑब्जेक्ट 2, 3 पे रखा है, वो शीशे से 2 कदम दूर है एक्स एक्सिस के लोग, हम 2 कदम इधर इमेज बनाते रहे, उसका क्या आया बताओ, ये क्या पॉइंट है, 6, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द पॉइंट P 2, 4 इज रिफ्लेक्शन, ये भी लाइन का सवाल है, फिर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पिछले बार अगर किसी को डाउट हो गया है तो प्लीज़ इस बार अटमोस्ट ध्यान दें ताकि हम डाउट ना रह जाए हमारा इसमें। मैं पॉइंट बना ले रहा हूं पहले, बताओ ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ प्लस की वैल्यू ऊपर होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक बात है। नीचे भी बना लेते हैं, -1, -2, -3, -4, इधर भी बना लेते हैं, -1, -2, -3, -4, ज़्यादा की नीड नहीं है। ठीक है, 2, 4 एक पॉइंट है, बताओ 2 और 4 सही बना रहा हूँ कि मैं नहीं, बताओ। x पे 2, y पे 4, ये एक कहीं पॉइंट है, ठीक बात है। अब एक लाइन है y = 1, y की वैल्यू 1 कहाँ लिखी है बताओ मुझे,
ये लाइन है y की वैल्यू 1, x की कितनी भी हो y इक्वल टू 1 का मतलब ये वाली लाइन है, y इक्वल टू 1 ये लाइन है। अब ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन पे आपका सीसा लगा। अब सीसा x और y एक्सिस पे नहीं लगा है, अब ये सीसा इस लाइन पे बना है। अब पहले तो सब बच्चे मुझे बताएंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो इसका इमेज नीचे नहीं बनेगा क्या? ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 2 4 पे, तो इसका इमेज कहीं इस क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, शीशे के पीछे ही तो बनेगी भैया इमेज। अब शीशे से वो जितना दूर है, यहाँ से शीशा कितना दूर है बताओ? 4 से 1 कितना कदम है ये बताओ? यहाँ था 4, यहाँ था 1, 3 कदम है ये। तो आपको 3 कदम नीचे आना पड़ेगा। 1 कदम तो ये हो गया और 2 कदम और, कितना हो गया बताओ? y एक्सिस की वैल्यू, x तो वो 2 ही रहेगा, तो 3 कदम और नीचे आ गए जब हम, तो x एक्सिस पे तो वो 2 ही रहेगा, y पे उसकी वैल्यू हो जाएगी -2। सही बात है कि नहीं? मैं फिर से थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। ये पॉइंट और इस लाइन के बीच में कितनी दूरी है मुझे बताओ? ये पॉइंट 4 पे था, y एक्सिस पे थे को तो था कि नहीं? और ये लाइन किस पे? 1 पे। यहाँ से यहाँ तक 3 कदम है आपके, ये 4 पॉइंट है y पे, ये 1 पॉइंट है y पे। यहाँ से 3 कदम और नीचे अगर आओगे तो 1 - 3 अगर करोगे तो -2 आ जाएगा y एक्सिस पर, और x पे तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, x पे तो हम सेम ही चल रहे हैं। तो 3 कदम ऊपर, 1 से 4, 1 to 4 3 स्टेप्स हैं, 1 से नीचे 3 कदम आएंगे, 1 से 0 आने तक 1 कदम, 0 से -2। आपका आंसर पी डैश का क्या हो जाएगा बताओ? y पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, 2 - 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ रहे हैं। अ पॉइंट PAB इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन देन रिफ्लेक्टेड टू द y एक्सिस। देखो पहले ओरिजिन पे हुआ है, फिर वही चीज y एक्सिस पे हुआ है। P डैश हैज द कोऑर्डिनेट्स एज 4 6, फाइंड द इवैल्यूएट इन v। ये कह रहे हैं एक पॉइंट है AB फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट AB या ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट हुआ तो दोनों साइन चेंज हुए होंगे कि नहीं? फिर y एक्सिस के लूँगा तो 2 चीज़ें हुई हैं, तो आप भी उल्टा कर लो। अब P डैश कितना मिला है बताओ आपको? P डैश मिला है आपको 4 6। इससे पहले इसका रिफ्लेक्शन किस में हुआ है बताओ? इसका रिफ्लेक्शन हुआ है y पे। अगर रिफ्लेक्शन y पे हुआ होगा तो आपको मैंने कितनी बार बोला कि y तो चेंज ही नहीं हुआ होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? x। अगर ये रिफ्लेक्शन इससे पहले फिर ओरिजिन पे भी हुआ है, तो अगर ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन हुआ तो भैया दोनों वैल्यू चेंज हुई होंगी। दोनों चेंज हुई होंगी तो 4 होगा यहाँ, और यहाँ -6 होगा। बताओ आपकी इमेज क्या थी? आपकी इमेज 4 6 थी। इससे पहले, इमेज से पहले क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि आपका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो अगर y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो y की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, x को मैंने अपोजिट कर लिया। उससे पहले ये ओरिजिन के अलोंग हुआ था तो दोनों ही वैल्यू चेंज हुई होंगी, तो दोनों साइन चेंज कर लिए। आपका जो पॉइंट PAB है ये आ गया, इसका मतलब A का वैल्यू आया 4 और B का वैल्यू आया -6। करेक्ट है कि नहीं? आसान है। आगे चल रहे हैं। 9th क्वेश्चन। द पॉइंट A 4 6 है, पहले ओरिजिन के अलोंग हुआ, फिर y एक्सिस के अलोंग हुआ, तो भैया A डैश दे दिया है, A डबल डैश आपको दे दिया है। ठीक है, हमें पता लगाना है A डबल डैश, A डैश पता लगाना है हमें। आपको A का वैल्यू दिया है, A दिया है आपको कितना? 4 6। अब मुझे बताओ सबसे पहले ओरिजिन के अलोंग हुआ है, ओरिजिन के अलोंग हुआ है वो आया है A डैश। ओरिजिन के अलोंग क्या होता है? ओरिजिन के अलोंग दोनों साइन चेंज होते हैं, तो -4 -6, ये वैल्यू आ गई -4 -6। उसके बाद जो आंसर आया वही किसके साथ हुआ है? y एक्सिस के। y एक्सिस में y की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती है, तो ये यही रहेगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 4 -6। आप ऐसा करो, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, A डबल डैश, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, A डबल डैश नीचे रख ले रहा हूँ। A डबल डैश कितना आ रहा है? 4 -6। ये आपके आंसर हो जा रहे हैं। ओरिजिन में दोनों साइन चेंज हुए, देखो 4 6 था, दोनों साइन चेंज कर दिए। y एक्सिस में y का चेंज नहीं किया, x का चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पा रहे हैं, P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन इन द x, P इन द x एक्सिस एंड Q इन द, P को x में करना है। P है आपका -2 और 3,
इसको रिफ्लेक्शन अंडर एक्स है भैया, रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस है। बताओ मुझे एक्स एक्सिस में कितनी बार मैंने कह दिया है, अगर इसका इमेज बनेगा पी डैश जो हम मान लेते हैं इसकी इमेज बनेगी, तो मुझे ये बताओ एक्स एक्सिस का लोगे तो एक्स की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगी, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आपका आंसर है। क्यू पॉइंट आपका 5 4 है। 5 4 हो जो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वाई एक्सिस में क्यू डैश जो आएगा वाई तो चेंज ही नहीं होगा, एक्स की वैल्यू -5 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। So we'll stop till here only. We have 17 question in this exercise. Today we have done introduction also that have taken much amount of time. तो हम यहीं रोक देंगे, वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए। द फर्दर क्वेश्चंस रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ बी विद मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लगातार बने रहिए। वी विल बी अपलोडिंग utmost all chapters possible from class 10th ICSE, considering your board examinations coming nearby. तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर द वीडियो पॉसिबल। कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू एवरीवन।